تعالى وتقدس. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث والرباع. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگ عزیز دوستو، باوقار رونق اسٹیج علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین کرام، گھروں سے اگر ہماری آوازوں کو سماعت کرتی ہو خواتین پردہ ماور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی ڈالنے سے پہلے آپ اور ہم مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، بے سہاروں کا سہارا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آپ اور ہم مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کسی شاعر نے کہا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اور محفل میلاد میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. محفل میلاد میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اور یہ محفل میلاد ہے بیٹھو یہاں قرینے سے، یہ محفل میلاد ہے بیٹھو یہاں قرینے سے، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے حضور چل کے آتے ہیں مدینے سے. ہم سب کا ایمان ہے حضور چل کے آتے ہیں مدینے سے. معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے بالکل آخری خطیب کے شکل میں حاضر آیا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز میں مزید گفتگو نہیں کروں گا جب تک آپ کی سماعت بیدار رہے گی، جب تک آپ سننے کے قابل رہیں گے تب تک ہی میں سنا پاؤں گا. آج درود شریف پڑھانے کے بعد ہی اندازہ لگ جاتا ہے کہ لوگ سننے کی کتنی مزاج ہیں. لیکن میں آپ کو درود کی فضیلت بیان کروں، اس کے بعد میں اپنی تقریر کا شروعات کروں گا. ایک شخص بروز قیامت، اللہ کا فضل ہے میں ہر حساب سے تقریر کرتا ہوں لیکن ابھی سنجیدگی کے ساتھ سنیں. ایک شخص بروز حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا اعلان کر دیا. اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ اس کی زندگی میں روزہ ہے، نہ عبادت ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا فرشتے اسے جہنم میں لے جاؤ. غور سے سنیے گا، میں فضیلت درود بیان کر رہا ہوں. درود کی فضیلت کیا ہے آج کہا جاتا ہے لیکن ہم درود پڑھ نہیں پاتے. لیکن فضیلت درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اس کا آپ سماعت کریں، اس کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ درود کا فضیلت کیا ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس پوری زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی چیز نہیں. بروز حشر کے دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. پوری زندگی اس نے نماز بھی نہیں پڑھا، پوری زندگی عبادت نہیں کیا، پوری زندگی میری فرما برداری بھی نہیں کیا. اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے جنت میں بھیجا جائے. فرشتوں نے کیا پروردگار سے کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا کرنا ہے، اسے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. اعلان ہو گیا بروز حشر کے دن ایک شخص ہے جسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، جس کے پاس نیکی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں جانے کے لیے اگر ہمارے پاس نیکی نہ ہو تو ہم جنت میں جا نہیں سکتے. تب وہ شخص ہے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اور کس طرح لے جا رہے ہیں؟ فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. لیکن اس کے چہرے پہ کوئی افسوس نہیں ہے. اس لیے افسوس نہیں، وہ جان رہا ہے کہ ہم نے پوری زندگی اللہ کی عبادت نہیں کیا ہے، ہم نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی ہے. اسے پتا ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کو یاد کیا ہی نہیں، تو اللہ نے جنت میں بھیجے کیسے؟
وہ شخص جا رہا ہے کیونکہ جان رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مالک اللہ جسے چاہے جنت دینا. وہ شخص جا رہا ہے, فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں, جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن ابھی جہنم کے قریب پہنچا تھا, ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوا تھا, جہنم کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک اعلان ہوتا ہے فرشتے اب اسے جنت کی طرف لے جاؤ. اچانک اعلان ہوتا ہے فرشتے اسے جنت کی طرف لے جاؤ. اللہ کا اعلان سنتے ہی فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانے لگتے ہیں. جب فرشتے اسے جنت کی طرف لے جانے لگتے ہیں تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے. کیوں نہ پریشان ہو, جان رہا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے, اور فرشتے مجھے جہنم میں لے جا رہے تھے, لیکن اچانک اب فرشتے مجھے جنت کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں. وہ شخص فرشتوں سے پوچھتا ہے, وہ شخص فرشتوں سے پوچھتا ہے, فرشتے بتا آخر کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے تو میرے حق میں اعلان کیا تھا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے, اور تم لوگ مجھے جہنم میں ڈالنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن اچانک اب جنت کی طرف کیوں لے جا رہے ہو. جب وہ شخص فرشتوں سے پوچھتا ہے نا کہ فرشتے بتا آخر کیا بات ہے, میں جہنم میں جانے کے قابل تھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فرشتے اسے جہنم میں ڈالو, تم مجھے جہنم میں لے جا رہے تھے, لیکن اچانک اب جنت کی طرف کیوں لے جا رہے ہو, مجھے تو جہنم میں ڈال جانا چاہیے نا, اب جنت کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو. فرشتوں نے کہا کہ اگر پوچھنا چاہتے ہو نا تو مجھ سے نہیں بلکہ رب سے پوچھ, یہ اعلان میرا نہیں بدلا ہے, یہ اعلان رب کا بدلا ہے. اب وہ انسان اللہ کے بارگاہ میں جائے گا اور اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتا ہے, پروردگار میرے پاس تو کوئی عمل تھا نہیں, پوری زندگی میں نہ نماز پڑھا, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ زکات کیا, پوری زندگی ہم نے تیری نافرمانی میں اپنے وقت کو گزار دیا, کبھی تیرے فرما بردار بندہ بن کے رہا نہیں, اور تو نے اعلان کر دیا تھا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے, لیکن اب مجھے جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے, آخر بات کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے حکم کا, اپنے اعلان کو بدل ڈالا, جہنم کا فیصلہ آپ جنت میں تبدیل کر ڈالے, آخر وجہ کیا ہے. غیب سے آواز آئی, اے میرے بندے اگر پوچھنا چاہتے ہو نا تو مجھ سے نہیں بلکہ میرے محبوب مدینے کے آقا سے پوچھنا. غیب سے آواز آئی, اے میرے بندے اگر پوچھنا چاہتے ہو, جاننا چاہتے ہو کہ فیصلہ کیسے بدل گیا, تو مجھ سے نہیں بلکہ اپنے محبوب سے پوچھ, میرے محبوب سے پوچھ. اب وہ گناہگار انسان کہے گا میرے محبوب اور تیرا محبوب, اللہ کہے گا ہم مدینے کے آقا سے پوچھ لے. اب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں جائے گا. کون شخص؟ جو آقا سے پیار کرنے والا ہے, پوری زندگی نماز نہیں پڑھا, کوئی عبادت نہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں وہ گزارا ہے. اب وہ شخص مدینے کے آقا کی بارگاہ میں جائے گا اور مدینے کے آقا سے پوچھے گا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا کہ میں جہنمی ہوں اور میں جہنم میں جا رہا تھا, لیکن آپ نے ایسی کون سی چیز ہمارے اندر دیکھا, آپ نے ایسی کون سی چیز ہمارے اندر پائی جس کی وجہ سے اب میں جہنمی تھا, آپ نے مجھے جنتی بنا دیا. تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا کہ اے میرے حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب, تم مجھ سے محبت کرنے والے تھے, اللہ کے لیے عبادت تو نہیں کیے تھے, نافرمانی میں اپنے وقت کو گزارا تھا, لیکن تم جہنمی تھے, لیکن میں اس لیے تمہیں جنتی بنا دیا. وہ شخص کہے گا کہ آخر میں جنتی بنا کیسے, وہ شخص پوچھے گا آخر میں جنتی بنا کیسے. تو حضور فرماتے کہ تم نے اللہ کی تو عبادت نہیں کیا, لیکن ایک دن ایسا تھا, ایک روز ایسی تھی کہ تم میلاد شریف میں گیا تھا, اور میلاد شریف میں جانے کے بعد میرے اوپر صرف ایک بار درود پڑھا, میرے اوپر صرف ایک بار درود پڑھا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نامہ اعمال میں نیکی ہونے کے لیے ضرورت ہے, جنت میں جانے کے لیے نیکی کی ضرورت ہے, اور تیرے پاس نیکی نہیں تھا اس سے تم جہنم میں جا رہے تھے, لیکن میں نے اللہ کے بارگاہ میں فریاد کیا کہ پروردگار تیرے لیے کچھ کیا یا نہ کیا, لیکن تیرے محبوب کے لیے کیا ہے, تیرے لیے کچھ کیا یا نہ کیا لیکن تیرے محبوب کے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میرے محبوب کے لیے کیا ہے تو گویا اس نے میرے لیے بھی کیا ہے. تم نے صرف میرے اوپر ایک بار درود پڑھا تھا, یہ محمد کو گوارا نہیں ہو سکتا, یہ محمد کو گوارا نہیں ہو سکتا کہ ان پہ درود پڑھنے والا سب جہنم میں جلے. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی دیکھ نہیں سکتے. آپ مزید واقعہ سنتے ہوں گے نا کہ بروز حشر کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوں گے, شادی خانہ آبادی کی تحت ہے, لیکن میں آپ کو فضیلت درود بیان کروں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے کیوں نہیں اٹھاتے,
اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، آخر بات کیا ہے؟ تو جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا کی زبان اقدس سے کیا ظاہر ہوگی؟ حضور فرمائیں گے میں اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا سکتا جب تک میرے امتی درود پڑھنے والا سب جنت میں نہ چلا جائے۔ اندازہ لگائیے بروز حشر کے دن کون اپنے سر کو سجدے میں رکھ رہے ہیں؟ وہ نبی سجدے میں رکھ رہے ہیں جو صرف نبی نہیں بلکہ تمام نبیوں کا امام ہے۔ اندازہ لگائیے نا، جس کے بارے میں سیدی سرکار اعلی حضرت کو پڑھیے، سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ ہم مقدر کے دھنی ہیں، ہم مقدر کے دھنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نامی دیا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ جان رحمت کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر تھا نا۔ اللہ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں آدم کے زمانے میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں نوح کے زمانے میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں ابراہیم کے زمانے میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں موسیٰ کے زمانے میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کی مصطفیٰ جان رحمت کی اقدس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آدم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی ہمیں دیا ہے جو تمام نبیوں کا امام ہے، جس کے بارے میں سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی سے افضل کوئی مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ آدم نبی ہے لیکن ہمارے نبی سے مرتبے میں افضل نہیں ہو سکتے، نوح نبی ہے لیکن ہمارے نبی سے مرتبے میں افضل نہیں ہو سکتے، ابراہیم نبی ہے لیکن ہمارے نبی سے مرتبے میں اونچے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی کو جو مقام ملا ہے نا پورے کسی نبی کو نہیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا مقام بلند بنایا ہے۔ ہم اس ذات نبی کی امتی ہے، ہمیں فخر ہونی چاہیے، اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ ہر شے پہ قادر تھا، اللہ چاہتا تو کسی اور مزید احسان ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم سے قبل حافظ و قاری ظاہر صاحب بھی تقریر کر رہے تھے، آپ کو بتایا کہ اللہ ہر شے پہ قادر تھا۔ اب ذرا سوچیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سوچیے کہ اللہ ہر شے پہ قادر تھا۔ دنیا کی جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اسے کسی کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہوا دیکھیے، سمندر دیکھیے، دریا دیکھیے، جھاڑ جنگل پیڑ پودے، جتنے چیزیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا کر پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں کھچر کی شکل میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں ہوا اور پانی کی شکل میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں دریا اور سمندر کی شکل میں پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور کی شکل میں پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھاڑ جنگل پیڑ پودے کی شکل میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خاص احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا کیا۔ آخر انسان کی شکل میں کیوں پیدا کیا؟ محدود یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ہر شے پہ قادر تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں کسی منافق کے گھر پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں کسی فاجر کے گھر پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی منافق کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن کے گھر پیدا کیا، مومن کے گھر پیدا کیا۔ مسلمان اگر ہم مومن ہیں نا تو اپنے عمل و کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ صرف کہے میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں۔ علامہ اقبال کو پڑھیے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ علامہ اقبال کے ایک مشہور شاعر ہے جس کے اوپر میں اگر چاہوں گا تو 2 سے 3 گھنٹہ بھی تقریر بول سکتا ہوں، اتنی قیمتی اشعار ہے، فقط 2 لائن کا اشعار ہے، لیکن اس پہ اگر چاہی جائے پوری رات گفتگو کرنے کے لیے تو پوری رات گزر سکتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر زبانیں پڑھ بھی لے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، غور سے سنیے، اگر زبانیں پڑھ بھی لے لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی انسان کہہ کہ مسلمان ہے، کہہ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کا قول و فعل بتاتا ہے، مسلمان کا کام بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان جب کرے تو دیکھنے سے خود معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ مسلمان چل رہا ہے، لیکن ہمارا چلنا، ہمارا بولنا کچھ الگ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگ پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں، لوگ پہچان نہیں پاتے۔ مسلمان اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارو تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں آپ مسلمان ہیں، پوچھنا نہ پڑے، دیکھ کر لوگ سمجھ جائے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں۔ میرے کہتے یہ شادی خانہ آبادی کے تحت یہ محفل پاک کو سجایا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ادھر کی بات نہ کروں، ابھی میں فضیلت درود ہی بیان کر رہا تھا، لیکن یہ شادی خانہ آبادی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، فن کی ماتاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع،
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि निकाह करो ऐसी औरत से जो तुम्हें पसंद आ जाए। कुरान मैं अपनी बात नहीं, कुरान कहता है फन क्यों माताबा लकुम मिनन निसाई मतना व तुलाता व रुबा। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि निकाह करो ऐसी औरत से जो तुम्हें पसंद आ जाए, और एक के बाद अगर तुम्हारे पास इस्ताअत है, दौलत है, ताकत है कि एक के बाद दूसरी शादी कर लोगे और दूसरी की भी परवरिश कर सकते हो, तो कुरान इजाजत देता है कि एक के बाद दूसरी शादी कर लो। अगर दूसरे के बाद भी तुम्हारे पास दौलत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होती है, अगर तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि दूसरे शादी के बाद अगर तीसरे शादी करने के बाद अगर तुम्हारे पास हैसियत है, ताकत है, ऐसा ना हो कि आप 4 शादी कर ले और कहें कि कुरान बताता है, हदीस बताती है। हदीस से पता है कि 4 शादी कर सकते हैं, हदीस बताता तो गलत है। हदीस और कुरान इजाजत देता है शादी करने के लिए, लेकिन हदीस और कुरान दोनों चीज बताया। अगर हैसियत है, ताकत है, तो ऐसा ना हो कि पहली शादी आप की है तो पहले शादी करने के बाद पहली बीवी को आप बिरयानी खिला रहे हो और दूसरी बीवी को सूखा रोटी मिल रहा, ऐसा नहीं। अगर हैसियत हो, अगर चारों के हक में फैसला बराबर कर सकते हैं तो कुरान इजाजत देता है, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 शादी करने की इजाजत देता है। लेकिन चारों बीवी के अंदर फैसला बराबर होनी चाहिए। अगर एक बीवी को रहने के लिए मकान हो तो दूसरी बीवी के लिए भी मकान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरी बीवी को किसी पर आने में आए, सबका हक बराबर होनी चाहिए। जो आप खा रहे हैं बेहतर है कि आप अपनी बीवी को खिलाएं, और अगर आपने एक के बाद दूसरी शादी किया तो बेहतर है कि आप दूसरी बीवी को भी वही खाना खिलाएं जो आप खा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अच्छा खाएं और दूसरी बीवी को कुछ कम दे दें, ऐसा भी नहीं। कुरान इजाजत देता है। लेकिन बारे कैफ में आपको हदीस कुदसी के ताल्लुक सहाबा कराम की जिंदगी, आज सहाबा कराम, एक सहाबा है जो गरीब है, हदीस की रोशनी में सुनी, अपनी बात तो होती रहती है, हदीस की रोशनी में सुनी। एक सहाबी रसूल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे घर बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा। सहाबी रसूल है, परेशान है, गुर्बती की वजह से परेशान, उनके पास पैसा नहीं है। आज हम भी परेशान होते हैं ना, कहते हैं कि हमारे घर भी बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा, हमारे घर 20,000 50,000 रुपये महीना में आते हैं, लेकिन हमारे घर में बरकत का कोई नामो निशान नहीं है। बच्चे कमा रहे हैं, बाप कमा रहा है, चाचा भाई कमा रहे हैं, फिर भी हमारे घर में बरकत को कोई नुज़ूल नहीं है। वो भी सहाबी रसूल थे, हुजूर के बारगाह में गए और अर्ज करके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा परेशान हूँ, हमारे घर में बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा, परेशान है और हमारे घर में बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा। जानते हुजूर ने क्या फरमाया? सहाबा, तुम्हारे घर बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा? सहाबा ने कहा, हाँ हुजूर, हमारे घर बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा। हुजूर ने फरमाया, एक काम करो सहाबा, तुम शादी कर लो। क्या कहा? सहाबा तुम शादी कर लो। अब सहाबी रसूल कहते, हुजूर मैं गरीब इंसान हूँ, मैं अपनी पेट की परवरिश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी को सही तरीके से नहीं गुजार पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अच्छा खा सकूं, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अच्छा पहन सकूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी गरीबी की शिकायत आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ और आप कह रहे कि सहाबा निकाह कर लो। हुजूर ने फरमाया, सहाबा अगर बरकत देखना चाहते हो ना तो निकाह कर लो। अगर आज का कोई इंसान होता और किसी मौलवी या किसी हाफिज के पास जाता या किसी आलिम के पास जाता और कहता, हुजूर दुआ कीजिए या कोई ऐसा चीज दे दीजिए जिससे बरकत का नुज़ूल हो जाए, या कोई तरीका बता दीजिए जिससे बरकत का नुज़ूल हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है या पैसे हैं बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा। अगर आज का हाफिज या कारी या मौलवी या आलिम कह देता कि काम करो, बरकत देखना चाहते हो तो शादी कर लो, तो जानते हो क्या कहता है? आप पागल मालूम होते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी जिंदगी सही से गुजार नहीं पा रहा हूँ और आप शादी का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन कौन शादी का हुक्म दिया? हम अपनी तरफ नहीं देते। हुजूर, सहाबा कह रहे हैं कि हमारे पास बरकत का नुज़ूल नहीं है। हुजूर फरमाए कि सहाबा बरकत का नुज़ूल देखना चाहते हो, शादी कर लो। सहाबा को यकीन होता था ना नबी के बाद, सहाबा मान गए और जाकर शादी कर लिया। शादी करने के अभी कुछ दिन गुजरे थे, फिर भी बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा। अब सहाबा की परेशान है कि हुजूर ने कहा था कि शादी कर लो, बरकत का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा, आखिर वजह क्या है? साहबी कहते कि मैं सोचा कि एक दिन और हुजूर की बारगाह में फरियाद करूंगा, हुजूर की बारगाह में अपनी अर्जी को पेश करूंगा और कहूंगा, हुजूर मैंने शादी कर ली, फिर भी बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा। फिर सहाबा जाते हैं और हुजूर की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी गुर्बत का शिकायत किया था, मैंने अपनी गरीबी का शिकायत किया था, मैं कहा था कि हमारे घर बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा, आपने ऐलान किया था और आपने मुझसे कहा था कि सहाबा बरकत देखना चाहते हो, शादी कर लो। लिहाजा हमने आपकी बात को माना और आपकी बात को मानने के बाद हमने निकाह कर ली, शादी कर ली, लेकिन अब भी बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा। अब हुजूर फरमाते, सहाबा तुमने निकाह कर लिया, फिर भी बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा।
साहबा ने अर्ज किया, हाँ हुजूर हमने निकाह कर लिया फिर भी बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा। हुजूर फरमाते हैं साहबा एक काम करो दूसरी शादी कर लो। हुजूर क्या ऐलान करते हैं, साहबा एक काम करो अब दूसरी शादी कर लो। अब साहबा परेशान होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बार बार अपनी गुर्बत का शिकायत करता हूँ, अपनी गरीबी का शिकायत करता हूँ। पहले हाल ये था कि हमारे घर अपनी जिंदगी गुजारना मुश्किल था, हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी गरीबी का शिकायत करवा दिया, आपने हमारी शादी करवा दी और आपने कहा कि निकाह कर लो बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। मैंने आपकी बात को माना और निकाह कर ली, निकाह के बाद भी बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा है। पहले 2 रोटी हम खाते थे लेकिन अब 1 रोटी बीवी को खिलाना पड़ता है। हालत यह है कि पहले से भी जिंदगी और दुभर होती चली जा रही है। और मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि हुजूर बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा, आप बार बार कहते हैं कि शादी कर लो। हुजूर ने फरमाया साहबा बरकत देखना चाहते हो ना, शादी कर लो। साहबा इनकार नहीं करते हैं, खुशी खुशी जाकर दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर मैं आपको दुनियावी मिसाल दूं, अगर आज कोई इंसान परेशान हो, अगर कोई मौलाना शादी करवा दे उसके बाद फिर वो इंसान जाए मौलाना के बारगाह में कहे, मौलाना साहब हमने आपको शिकायत किया था फलाने दिन, आपने कहा शादी कर लो बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। मैंने आपकी बात को माना, मानने के बाद हमने शादी कर ली, शादी करने के बाद भी अब तक बरकत नहीं हो रहा। आपने हमारी जिंदगी को और हमारी हालात को और खराब कर डाला। मैं अपनी हालात से परेशान था, हमने आपको सोचा कि आप कोई ऐसा चीज बताएंगे जिसकी वजह से बरकत का नुज़ूल होगा, लेकिन आपने शादी कराकर हमें किस परेशानी में फंसा दिया। लेकिन साहबा को यकीन था हुजूर फरमा रहे ना तब बरकत होगा। साहबा के दूसरी शादी कर ली, कोई इनकार नहीं, साहबा दूसरी शादी कर ली। लेकिन हालत क्या था, एक के बाद 2 दूसरी शादी जब कर ली तो और परेशानी बढ़ गई। अब साहबा बड़ा परेशान है, तो हुजूर से मैं बार बार शिकायत करता हूँ कि हुजूर मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई ऐसा चीज बताया जाए, कोई ऐसी चीज बता दीजिए हमें जिससे बरकत का नुज़ूल होना शुरू हो जाए। लेकिन साहबा जान लेते कि मैं बार बार हुजूर से कहता हूँ, बार बार हुजूर निकाह का हुक्म देते हैं। अब साहबी रसूल फिर जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, हुजूर की नजर उस सहाबे पे पड़ती है। हुजूर बुलाते हैं साहबा को, कहते हैं साहबा क्या तुम्हारे घर बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा? साहबा कहते हुजूर अब मैं नहीं कुछ बोलूंगा, जब मैं बार बार आपसे शिकायत करता हूँ अपनी गरीबी का, बार बार हमें निकाह करा के कहते शादी कर लो बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। हुजूर हमने आपकी पहली बार बात को माना, उसके बाद निकाह कर ली, लेकिन बरकत का नुज़ूल नहीं हुआ। आपने फिर मुझे हुक्म दिया कि साहबा बरकत देखना चाहते हो दूसरी शादी कर लो बरकत हो जाएगी। लेकिन हुजूर हमने दूसरी शादी कर लिया फिर भी बरकत का कोई नामो निशान नहीं है। हुजूर ने फरमाया साहबा बरकत देखना चाहते हो ना? साहबा ने कहा हुजूर यही तो देखने के लिए तड़प रहा हूँ, यही तो देखने के लिए तड़प रहा हूँ, कब बरकत हो। हुजूर ने फरमाया साहबा अगर बरकत देखना चाहते हो ना तब तीसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो। अब वो साहबा और परेशान हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगा, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बार बार आपसे शिकायत करता हूँ, अपनी बात नहीं हकीकत। अब साहबा कहते हुजूर मैं बार बार आपसे शिकायत करता हूँ कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बरकत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई ऐसा चीज बताए जिससे बरकत का नुज़ूल हो जाए। पहली बार हमने शिकायत की आपने हमारी पहली शादी करा, दूसरी बार हमने शिकायत की दूसरी शादी, अब तीसरे बार भी हमने शिकायत की आपने हमारी तीसरी शादी का हुक्म दे दिया। हुजूर फरमाते साहबा अगर बरकत देखना चाहते हो ना तो शादी करो। मैं यहाँ रुक के आपको बात बताता हूँ। आज बहुत सारे घरों में ऐसे हालात आ गए हैं कि जब बात बच्चे या बच्ची की शादी करने की आती है ना तो माँ बाप ये कहते हैं कि अभी हमारा बच्चा कमा नहीं रहा, जब अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा तब उसकी शादी करेंगे। लेकिन जानते हैं हदीस पाक है जब लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो उसके गार्जियन के ऊपर ये हुक्म है कि अपने बच्चे या बच्ची की शादी कर दे, ये हुक्म है। वरना अगर खुदा ना खास्ता अगर उसके बच्चे या बच्ची बालिग होने के बाद अगर कोई गुनाह करते हैं तो उसके गुनाह का जिम्मेदारी उसके बाप के सरों पे भी होता है। इसलिए हर गार्जियन के ऊपर लाजिम है अगर बच्चा बालिग हो जाए, शादी का उम्र हो जाए तो कोशिश करे कि जितना जल्द हो सके हमारे बच्चा का शादी हो जाए। अगर बच्ची बालिग हो जाए तो ये कोशिश करे कि जितना जल्द हो सके हम अपनी बच्ची की शादी कर दें। बड़े के बहुत सारे लोग इस उम्मीद पे रहते हैं कि जब हमारा बच्चा कमाने लगेगा, जब पैसा भेजने लगेगा, अपने पाँव अपने बड़ों घुटने पे खड़ा हो जाएगा तो हम शादी कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब उम्र हो जाए तो शरीयत इजाजत देती है कि आप अपने बच्चे या बच्ची की शादी करें। बड़े के अब साहबी रसूल है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साहबी रसूल बरकत देखना चाहते हो तो तीसरी शादी कर लो। साहबी रसूल बार बार कहते हैं हुजूर मैं बार बार आपसे शिकायत करता हूँ, बार बार यही कहते हैं कि साहबा शादी कर लो बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। अब तक हमने तीसरी शादी कर ली लेकिन फिर भी बरकत का कोई नामो निशान नहीं। बस इसी वाक्य पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा। देख रहे हैं ना शेरनी, आपके सामने भी है, हमारे सामने भी, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिग्नल हो चुकी है, खत्म कर देना है। मैं इसी वाकया को बोलूंगा और इंशाअल्लाह कभी वक्त रहा और कभी आपके दायरे मोहब्बत में हाजिरी होगी तो मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा।
लेकिन साहबी रसूल है, मैं ये कर रहा था कि साहबी रसूल है, हुजूर के बारगाह में बार बार यही कहते हैं हुजूर बरकत का नुज़ूल देखना चाहता हूँ। लेकिन साहबी रसूल जानने की जब मैं बार बार बरकत का नुज़ूल देखने के लिए हुजूर के बारगाह में अर्जी पेश करता हूँ तो हुजूर बार बार कहते हैं साहबा शादी कर लो, साहबा शादी कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में फिर जाते हैं और साहबी रसूल फिर जाने के बाद हुजूर से कहते हैं हुजूर अब तक हमने 3 बार शिकायत की और आपने 3 बार हमारी शादी करा दी और अब तक हम 3 शादी कर लिए लेकिन अब तक बरकत का नुज़ूल नहीं मिला। हुजूर ने फरमाया साहबा बरकत देखना चाहते हो ना? साहबा कहते हैं हाँ हुजूर बरकत देखना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया साहबा एक काम करो, चौथी शादी करो। अब साहबा और परेशान कहते हुजूर एक के बाद मैं दूसरी शादी किया तो हालत और खराब हो गई, दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी किया और हालत खराब होती गई, और जब भी मैं आपको अपनी गुर्बत का शिकायत करता हूँ आप बार बार कहते हैं कि साहबा शादी कर लो, साहबा शादी कर लो। हुजूर फरमाते साहबा बरकत देखना चाहते हो, चौथी शादी कर लो। साहबा इनकार नहीं किया। अगर आज कोई आलिम कह दे, कोई मौलाना कह दे जाओ चौथी शादी कर लो तो लोग यही कहेंगे कि अब तक हम पागल समझते थे लेकिन अब मालूम हो गया कि ये पागल है। अब तक लोग समझता था पागल, लेकिन अब अगर कोई मौलाना कह दे कि जाओ तुम चौथी शादी कर लो बरकत हो जाएगा तो लोग यही कहेंगे मौलाना पक्का पागल मालूम होता है। लेकिन हुजूर की बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबी रसूल को कहा साहबी रसूल बरकत देखना चाहते हो जाओ चौथी शादी कर लो, तो साहबी रसूल जाते हैं चौथी शादी कर लेते हैं। जब चौथी शादी कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में बरकत का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। जब उनके घर में बरकत का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है ना वो सहाबी बड़े खुश होते हैं और खुश होने के बाद हुजूर के बारगाह में जाते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर उस सहाबी पर पड़ती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत में मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने के बाद कहते हैं साहबा आओ मेरे करीब आ जाओ, साहबा आओ मेरे करीब आ जाओ। साहबा कहते हैं हाँ हुजूर बोला जाए। हुजूर फरमाते हैं साहबा तुम इस उम्मीद से भी परेशान हो ना, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए कि तुम्हारे घर बरकत का नुज़ूल हो रहा है। साहबा ने कहा हाँ हुजूर अब हमारे घर बरकत का नुज़ूल हो रहा है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी साथ कोई परेशानी भी है? साहबा ने कहा हुजूर एक बात की परेशानी है। हुजूर ने फरमाया बोलो साहबा किस बात की परेशानी है? साहबा ने कहा हुजूर मैं जब भी शिकायत करता था कि हुजूर मैं बड़ा गरीब हूँ, बार बार कहते थे कि साहबा निकाह कर लो निकाह कर लो। मैं निकाह कर लेता था लेकिन बरकत का नुज़ूल नहीं होता था। लेकिन हुजूर हमें बताया जाए कि जब हमने चौथी निकाह कर लिया तो बरकत का नुज़ूल क्यों हो रहा? हर आदमी नहीं सोचेगा जब शादी करने के बाद बरकत का नुज़ूल होता तो पहली शादी के बाद ही बरकत होना शुरू हो जाती, लेकिन आखिर वजह क्या है कि शादी होने के बाद भी बरकत का नुज़ूल नहीं? अगर पहली शादी के बाद ना हो तो दूसरी शादी के बाद तो हो जानी चाहिए, फिर भी ना हो। साहबा बड़ी परेशान थे ना। साहबा हुजूर के बारगाह में कहते हैं हुजूर हमें बताया जाए जब मैंने अपने गरीबी की शिकायत किया मैं बरकत का नुज़ूल देखना चाहता तो आपने हुक्म दिया कि साहबा निकाह कर लो बरकत का नुज़ूल हो जाएगा, लिहाजा हमने आपकी बात को माना और निकाह कर ली लेकिन बरकत का नुज़ूल नहीं। आखिर वजह क्या है? हुजूर फरमाते हैं साहबा जानना चाहते हो? साहबा कहते हैं हाँ हुजूर मैं जानना चाहता हूँ आपकी वजह क्या है कि बरकत का नुज़ूल नहीं है? हुजूर फरमाते हैं साहबा जानना और आप भी से सुन लीजिए बरकत का नुज़ूल क्यों नहीं हो रहा। हुजूर फरमाते हैं कि साहबा मेरे कहने के बाद तुमने निकाह किया था, तुम्हारे घर बरकत का नुज़ूल होता, लेकिन तुमने जिस लड़की से निकाह किया था वो लड़की साबरा नहीं थी, सब्र करने वाली नहीं थी। अगर सब्र करने वाली लड़की होती तो तुम्हारे घर बरकत का नुज़ूल होता। पता ये चला अगर पहली दुल्हन आई अगर सब्र करने वाली होगी तो बरकत का नुज़ूल होगा, अगर सब्र करने वाली नहीं होगी तो बरकत का नुज़ूल नहीं हो सकता। अब सहाबा कहते हुजूर मान लिया कि पहली बीवी सब्र करने वाली नहीं थी इसलिए बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा था, लेकिन हुजूर हमने तो आपकी बात पर दूसरी शादी कर ली थी, दूसरी शादी करने के बाद तो बरकत का नुज़ूल होना चाहिए, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद भी बरकत का नुज़ूल क्यों नहीं हुआ? हुजूर अर्ज करते हैं साहबा दूसरी शादी करने के बाद तुम्हारे घर में बरकत का नुज़ूल होता, लेकिन इसलिए नहीं हुआ कि तुमने जो दूसरी शादी की थी वो लड़की साबरा थी लेकिन शुक्रा नहीं थी, शुक्र करने वाली नहीं। पता ये चला कि अगर आप अपने घर में अगर शादी कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं तो दुल्हन तलाश करें तो सब्र वाली तलाश करें और शुक्र करने वाली तलाश करें। लड़की तलाश करें तो सब्र करने वाली शुक्र करने वाली, ऐसा ना हो कि सब्र भी ना कर पाए और शुक्र भी अदा ना कर पाए। हुजूर फरमाते शुक्रा होती, अगर शुक्र अदा करने वाली होती तो अल्लाह बरकत का नुज़ूल कर देता, लेकिन वो शुक्रा नहीं थी, साबरा थी, सब्र कर जाती थी लेकिन शुक्र अदा नहीं करती थी, इसलिए बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा। अब साहबी रसूल कहते हुजूर मान लिया कि पहली औरत साबरा नहीं थी, दूसरा औरत शुक्रा नहीं थी, लेकिन हमने जब तीसरी शादी की तो तीसरी शादी करने के बाद तो बरकत का नुज़ूल होना चाहिए, लेकिन तीसरी शादी करने के बाद भी बरकत का नुज़ूल क्यों नहीं हुआ? हुजूर फरमाते हैं तीसरी शादी करने के बाद बरकत का नुज़ूल होता, गौर से सुनिएगा, लेकिन
किस औरत से तुमने शादी कर ली, साहबा को बता रहे हैं, किस कैसी औरत से शादी कर ली जिसकी वजह से बरकत का नुज़ूल मिलेगा। हुजूर अर्ज़ करते हैं साहबा तीसरी औरत से शादी करने के बाद तुम्हारे घर बरकत का नुज़ूल होता, लेकिन इसलिए बरकत का नुज़ूल नहीं हुआ क्योंकि तीसरी औरत साबरा भी थी, शुक्र करने वाली भी थी, लेकिन तीसरी औरत जो थी वो चुगलखोर थी, लोगों की बुराइयां करने वाली। पता ये चला कि औरत के अंदर ये चीजों में से अगर किसी एक चीज का भी कभी होगा तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत का नुज़ूल मिलेगा। इसलिए ना कहा जाता है, कुरान बताता है अगर लड़का या लड़की तलाश करे तो दीनदार लड़की तलाश करे, दीनदार लड़की तलाश करे। दीनदार घराने में तलाश कीजिएगा और दीनदार घराने में अपने बच्चे या बच्ची की शादी कीजिएगा ना तो आने वाले बच्चे दीनदार होंगे, आने वाले बच्चे दीनदार होंगे। 11वीं शरीफ का मौका है ना, आखिरी बात को वहां सुने। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माँ के शिकम से ही वली है, माँ के शिकम से ही वली है, लेकिन किसी वली की जिंदगी देखने के लिए सबसे पहले उनकी माँ की जिंदगी को देखा। देखिए माँ की जिंदगी को देखिए, माँ कैसी होती है तब बच्चा कैसे होते हैं। अगर माँ अच्छी होती है ना तो बच्चे अच्छे होते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की बात, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के दरबार में सारे लोग भीड़ लगाए रहते थे। एक बार की बात है, कहते थे बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा अपने माँ के बारगाह में जाते और अर्ज करते, माँ तुम मुझे सिर्फ बेटा कहती है, तुम मुझे सिर्फ बेटा कहती है। माँ ने कहा फिर क्या कहूँ बायजीद, बहुत बड़े वली अल्लाह के वली गुजरे बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, कहते माँ सिर्फ तुम मुझे बेटा कहती है। माँ ने कहा बेटा, तो बेटा के अलावा और कहूँ क्या। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते माँ देखती नहीं है लोग हमारे हुजरे में आए रहते हैं, हमारे हाथों को चूमते हैं, हमारी किस तरह एहतराम करते हैं, किस तरह इज्जत देते हैं, किस तरह हमारे शान शौकत से हमारे नाम को लेते हैं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की माँ जानते हैं क्या जवाब देती है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की माँ कहती है बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें मेरा कमाल है, इसमें तेरा कमाल नहीं, इसमें मेरा कमाल है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि अल्लाह का वली मैं, दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह का वली मैं, दुनिया आज हमारे हाथ को चूम रही है लेकिन मेरी माँ कह रही कि इसमें मेरा कमाल है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा अपने माँ से पूछ बैठते हैं, कहते माँ बताया जाए दुनिया हमारे हाथ को चूम रही है, दुनिया हमारे नाम को अच्छे नामों से पुकार रही है, दुनिया हमारे इज्जत और एहतराम कर रही है, लेकिन तुम कह रही है इसमें मेरा कमाल है। माँ हमें बता आखिर तेरा कमाल कैसे है। तो माँ ने कहा बेटा बायजीद मेरा कमाल ये है कि जब भी मैंने तुम्हें दूध पिलाया कभी बेवजू नहीं बल्कि बावजू दूध पिलाया, बेवजू दूध नहीं बल्कि बावजू दूध पिलाया। अंदाजा लगाइए जिसकी माँ बावजू दूध पिलाए उसका बेटा बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की तरह। इस तरह औरतों को भी चाहिए कि अगर हालत हमल के साथ होना तो कोशिश करके अच्छे काम करें, अच्छे काम करने की कोशिश करें। वक्त नहीं कि मजीद वजाहत किया जाए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ सैयदना गौसे पाक की जिंदगी को देखिए। सैयदना गौसे पाक वली बने कैसे, माँ उनको मदरसे में ले गई, मक्तब में ले गई और उस्ताद से कहा कि मेरे बेटों को पढ़ा दीजिए, मेरे बेटों को पढ़ा दीजिए। उस्ताद जब बुलाते हैं मैं तेजी के साथ आज कल उसके बाद अपनी तकरीर का इख्तिताम कर देता हूँ। सैयदना गौसे पाक जब उस्ताद के पास जाते उस्ताद कहते बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना गौसे पाक कहते हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं खुद पढ़ूं, इजाजत हो तो मैं खुद पढ़ूं तेजी के साथ, इसी पे अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा। उस्ताद कहते बेटा अगर याद हो तो पढ़ूं। सैयदना गौसे पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ लेते हैं तो उस्ताद कहते बेटा सूरह फातिहा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयदना गौसे पाक कहते हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं सूरह फातिहा खुद पढ़ूं। उस्ताद कहते बेटा मकतब का पहला दिन है, तुम्हारी माँ ने कहा कि पढ़ा दीजिएगा मेरे बेटे अब्दुल कादिर को और तुम पढ़ने के लिए बेटा, लेकिन बात यह है कि जब मैं कह रहा हूँ तुम कह रहे हुजूर अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। सैयदना गौसे पाक कहते हुजूर हमें याद है। उस्ताद कहता बेटा अगर सूरह फातिहा याद है तो चलो पढ़ो। जब सूरह फातिहा मुकम्मल होती है उस्ताद कहते बेटा पढ़ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रही होती, सूरह बकरा शुरू करो। सैयदना गौसे पाक कहते हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं ये भी पढ़ दूं, मुकम्मल पढ़ दूं। उस्ताद बड़ा परेशान हुआ कि बेटा अब्दुल कादिर मकतब का पहला दिन है, तुम्हारे माँ ने कहा पढ़ा दीजिए और तुम पढ़ने के लिए आ रहे। बात यह है कि मैं जब भी कह रहा बेटा पढ़ो तुम कह रहे हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं खुद पढ़ दूं। उस्ताद कहते हो सकता है कि अब्दुल कादिर को एक पारा याद होगा। उस्ताद कहते बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो। सैयदना गौसे पाक पहला पारा मुकम्मल कर देते हैं। जब दूसरे पारे की बारी आते हैं उस्ताद कहते हैं बेटा ठहर जाओ। फिर उस्ताद कहते बेटा अब आओ पढ़ो आगे, याद है। तो सैयदना गौसे पाक कहते हुजूर अगर आपको इजाजत न दो तो और मैं पढ़ते रहूंगा। बात ये थी कि हुजूर सैयदना गौसे पाक पहला पारा के बाद दूसरा पारा शुरू कर दिया। दूसरा पारा पढ़ने के बाद उस्ताद यही सोच रहा था बार बार कि हो सकता है पहले पारे के बाद दूसरे पारा का भी हाफिज और दूसरा पारा खत्म करने के बाद ठहर जाए, लेकिन तारीख रवायत किताबों में आता है, बाद रवायत मिलती है कि सैयदना गौसे पाक एक के बाद दो पारे, दो के बाद तीसरे पारा, तीसरे पारे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा पारा शुरू करते गए। उस्ताद कहता था जिस तरह अब्दुल कादिर का पारा खत्म होते जाता था तो मेरी परेशानी बढ़ती जाती थी।
मैं इस उम्मीद से परेशान था कि न जाने अब्दुल कादिर को कितना पढ़ा जाए। मकतब का पहला दिन है, बच्चा पहला दिन पढ़ने के लिए आया। माँ ने कहा कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर को पढ़ा दीजिएगा, लेकिन बेटा अब्दुल कादिर का हाल ये कि पहला पारा सुनाने के बाद दूसरे पारा के बाद तीसरा पारा। रवायतों में आता है कि सैयदना गौसे पाक 18 पारा मुकम्मल सुना दिए। जब 18 पारा मुकम्मल सुना दिया और ठहर गए। 18 पारा मुकम्मल सुनाने के बाद जब ठहर गए, उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर, गौर से सुनिएगा, उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर ठहर क्यों गए, आगे बढ़ो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जिस गौसे पाक से मोहब्बत करते हो, जिस गौसे पाक का गाड़ी मनाते हो, गौसे पाक ने क्या जवाब दिया, गौर से सुनिए। गौसे पाक ने कहा कि हुजूर मैं इससे आगे भी पढ़ देता, हुजूर मैं इससे आगे भी पढ़ देता अगर मेरी माँ इससे आगे की हाफिजा होती। मैं जितनी मुद्दत तक अपनी माँ का दूध पीते रहा, माँ के गोद में था या माँ के शिकम में था, अब तक मेरी माँ ने सिर्फ 18 पारा ही पढ़ा था, इससे मैं 18 पारा का हाफिज हो गया। अंदाजा लगाइए, माँ अगर बच्चे को अपने शिकम में रखे, माँ अपनी बच्चे को अगर पेट के अंदर रखे और 18 पारा कुरान पढ़े तो बेटा 18 पारा का हाफिज, अंदाजा लगाइए। इसलिए मुसलमानों हमें गुजारिश है कि हम अपने घर में अपने बाल बच्चे की अच्छी सोहबत में रखें, ताकि हमारे बाल बच्चे की जिंदगी अच्छी सोहबत में गुजरे। और जब हमारे बच्चे की जिंदगी अच्छी सोहबत में गुजरेगी और हमारे बच्चे अच्छे सोहबत में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो यकीनन आने वाला दिन हमारे बच्चे यहाँ भी कामयाब होंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा उसके ऊपर अमल करने की तौफीक। दुनिया सलाम में पढ़ती है लेकिन इस अशार को समझा नहीं। सैयदी सरकारे आला हज़रत ने फरमाया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अब आपको मैं हदीस का मफ़हूम बताऊं। हुजूर का चचा अबू जहल जो ईमान नहीं लाया, बदअकीदा कहिए, काफिर कहिए, ईमान नहीं लाया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में 12 पहुंच जाता था और मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाता था। हुजूर फरमाते थे कि सुनो, अल्लाह एक है, खुदा की वहदानियत मान लो, राह हिदायत इख्तियार कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। और हुजूर बार बार यही कहते थे कि आप मेरा चचा है, मैं चाहता हूं कि आप इस्लाम कबूल कर ले ताकि अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच जाए। और हुजूर कहते थे मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूं, लेकिन अबू जहल बार बार यही कहता था कि आप नबी नहीं लगते बल्कि आप झूठे नबी लगते हैं, आप खुदा का भेजा हुआ सच्चे नबी नहीं। लेकिन आइए मैं सैयदी सरकारे आला हज़रत की अशआर पे रोशनी डालूं, उसके बाद मैं आपको वाकया बयान करूं। बहुत मशहूर वाकया है। एक बार की बात है कि अबू जहल अपने मुट्ठी के अंदर कंकड़ी को लेता और हुजूर के बारगाह में पहुंच जाता है। हुजूर के बारगाह में पहुंचने के बाद हुजूर से फरमाता, हुजूर मोहम्मद का दाना भतीजा है, कहता है मोहम्मद बहुत अल्लाह के सच्चे नबी होने का दावा करते हो ना, तो बताओ मेरे मुट्ठी के अंदर क्या है, बताओ मेरे मुट्ठी के अंदर क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते हैं कि बड़ा मक्कार आदमी, अगर मैं बता दूं फिर भी इस्लाम नहीं कबूल करेगा। हुजूर ने फरमाया अबू जहल क्या मैं बता दूंगा तो इस्लाम कबूल करोगे? अबू जहल ने कहा अगर बता दीजिएगा तो यकीनन मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हुजूर जान रहे थे अगर मैं बता दूं तो ये इस्लाम कबूल नहीं करेगा। और हुजूर ये भी जानते थे कि मक्कार आदमी, अगर मैं कह दूं कि इसके मुट्ठी में कंकड़ है तो कहेगा आप कहीं देख लिए होंगे, पत्थर चुनते हुए आप देख लिए होंगे, इसलिए आप कह रहे कि मेरी मुट्ठी में कंकड़ है, या कोई आपको बता दिया होगा। हुजूर ने फरमाया कि अबू जहल एक बात बताओ, तुम्हारा सवाल ये है कि तुम्हारे मुट्ठी में क्या है, अगर मैं बता दूं इस्लाम कबूल करोगे? उसने कहा हाँ। तो हुजूर ने फरमाया अबू जहल मुझे लगता है अगर मैं बता दूं तो तुम मुझे जादूगर समझोगे, इससे बेहतर है कि मैं ना बताकर तुम्हारे मुट्ठी में जो है उससे मैं बतवा दूं कि मैं कौन हूं, मैं गवाही ना पेश करूं कि मैं अल्लाह के नबी हूं या नहीं हूं। अगर तुम्हें इजाजत दो तो मैं तुम्हारे मुट्ठी के कंकड़ी से मैं अपनी इजाजत ले लूं, अपनी गवाही पेश करवा दूं। अबू जहल ने सोचा मैं तो सवाल आसान किया था, लेकिन हुजूर ने सवाल को और मुश्किल कर दिया। मैं सवाल आसान किया था, मैं सिर्फ इतना पूछा था हुजूर बताइए मेरी मुट्ठी में है क्या, लेकिन हुजूर ने सवाल को और मुश्किल कर दिया और हुजूर कह रहे हैं कि ये मुट्ठी वाली चीज बताएगी कि मैं कौन हूं। हुजूर ने फरमाया अबू जहल अगर इजाजत हो तो मैं नहीं बताता हूं कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है और तुम्हारी मुट्ठी में कौन सी चीज है, अगर इजाजत हो तो मैं ये पूछ लूं तुम्हारी मुट्ठी के अंदर जो चीज है वो बताए कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने कहा कि मैं तो सवाल आसान किया था लेकिन आपने सवाल और मुश्किल कर दिया, अगर ऐसा हो जाए कि हमारे मुट्ठी में क्या है, अगर मुट्ठी गवाही दे दे तो फिर मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है, अगर ऐसा है तुम्हारी मुट्ठी वाली चीज अगर गवाही पेश कर दे तुम इस्लाम कबूल करोगे?
अबू जहल ने कहा कि हाँ, अगर मुट्ठी वाली चीज अगर गवाही पेश कर दे आपको तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। हुजूर ने इशारा किया, मुट्ठी के कंकर ने हुजूर का गवाही पेश की और पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब इतना पढ़ा ना तो हुजूर ने कहा अबू जहल अब तो इस्लाम कबूल कर लो, अब तो इस्लाम कबूल कर लो। जानते अबू जहल क्या कहा? अबू जहल कहता नहीं, आप जादूगर मालूम होते, आप जादूगर मालूम होते हैं। ये बहुत मुकद्दर की बात है, ये बहुत मुकद्दर की बात है कि हमारे नसीब में ईमान है, ईमान जैसी दौलत है। आज दुनिया कहती है हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब है, गरीब नहीं हो। आज दुनिया कहती है हमारे पास इज्जत नहीं है, हम गरीब है। आज दुनिया कहती है हमारे पास शोहरत नहीं है, हम गरीब है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं है तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास शोहरत नहीं है तुम गरीब नहीं हो। सबसे बड़ी अगर दौलत होती है तो ईमान की दौलत होती है। इससे बड़ी दौलत कोई चीज हो ही नहीं सकती है, इससे बड़ी दौलत कोई हो ही नहीं सकती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे गरीब तो जरूर बनाया है लेकिन ईमान वाला बनाया है, ईमान वाला बनाया है। कुरान पाक में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या ईमान वालों, अल्लाह से डरो हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे कि डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और न मरो मगर मुसलमान होकर। कहने का मतलब ये है कि मरते दम तक अपने इस्लाम को और ईमान को सलामत रखो। जब तक जिंदा रहो तब तक ईमान की हिफाजत करते रहो। दौलत चली जाए कोई बात नहीं, ईमान नहीं जानी चाहिए। शोहरत खत्म हो जाए कोई बात नहीं, इज्जत व जिल्लत का मालिक रब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अगर इज्जत चाहिए इज्जत मुझसे मांगो, दौलत चाहिए दौलत मुझसे मांगो। दुनिया सोचती है कि अगर आज हमारे पास दौलत होगी तो दुनिया इज्जत करेगी, कभी नहीं। दुनिया की इज्जत देने से आप इज्जत ही नहीं हो सकते। अगर अल्लाह के नजदीक अगर आपका इज्जत है तो फिर आप इज्जतदार हैं। अगर अल्लाह के नजदीक आपका इज्जत नहीं तो फिर आपको इज्जत हो ही नहीं सकती है। दुनिया लाख आपकी इज्जत करे लेकिन खुदा के नजदीक अगर आपका इज्जत नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं दुनिया की इज्जत करने से, कोई फायदा नहीं। आज दुनिया मुझे अच्छा कहे कि मौलाना अच्छे हैं, हाफिज अच्छे हैं, कारी अच्छे हैं, अगर अल्लाह के नजदीक हम अच्छे नहीं तो फिर आपका अच्छा कहना कोई फायदा नहीं हो सकता। हमें दुनिया के सामने अच्छा नहीं बनना, हमें अल्लाह के सामने अच्छा बनना है। क्या खुशी की बात होती दुनिया ना कह के रब कहता कि ये मेरा बंदा खुश नसीब बंदा है, ये मेरा खुशगवार बंदा है, ये मुझे राजी करने वाला बंदा है। दुनिया क्या करेगी? दुनिया की रजामंदी में जन्नत नहीं मिलने वाली, अल्लाह की रजामंदी में जन्नत मिलेगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सैयदी सरकार आला हज़रत का अशआर मैंने बयान किया, और सैयदी सरकार आला हज़रत का अशआर। अब मैं आपसे पूछूं पत्थर के अंदर जान होता है या बेजान होता है? तो आप यही कहिएगा मौलाना पत्थर बेजान होता है, उसके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं होती है, गवाही पेश करने की सलाहियत नहीं होती, वो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। आपने देखा है ना? तो सैयदी सरकार आला हज़रत का अशआर समझिए, जिस तरफ फुट गई दम में दम आ गया। हुजूर की सीरत को बयान कर रहे, जिस तरफ फुट गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर ने सिर्फ पत्थर की तरफ इशारा किया था, पत्थर बता मैं कौन हूँ। बेजान पत्थर के अंदर जान आ गई और पत्थर ने गवाही पेश की हुजूर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वहां अबू जहल के मुकद्दर से बेहतर तो बेजान पत्थर था। अबू जहल आंख से देख रहा था कि अल्लाह के नबी हैं, जान रहा था कि अल्लाह के नबी हैं, लेकिन जानते इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा था? जान रहा था अगर हम हुजूर को इस्लाम कबूल कर ले और हुजूर को अल्लाह का नबी तस्लीम कर ले तो हमारी बादशाहियत चली जाएगी। बादशाहियत बचाने के लिए अबू जहल ने इस्लाम कबूल नहीं किया, और बादशाहियत कब तक उसकी रही? जब तक हुजूर की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था तब तक बादशाहियत उसकी सलामत थी। लेकिन जब हुजूर की नबूवत का ऐलान हो गया, हुजूर के जाने वाले बेनिसार सहाबा हो गए, तो हालत ये हुई कि अबू जहल को मक्के से निकाला गया, अबू जहल की बादशाहियत भी चली गई, अबू जहल की शोहरत भी चली गई। मैं कहना चाहता हूँ आज दौलतमंद इंसान इस फिक्र में रहता है अगर मैं राह हिदायत इख्तियार कर लूंगा, अल्लाह के रास्ते इख्तियार कर लूंगा, नबी के रास्ते को इख्तियार कर लूंगा, तो हो सकता है कि हमारी दौलतें खत्म हो जाएगी, हो सकता है कि हमारी शोहरतें खत्म हो जाएगी। नहीं मुसलमानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बेजान पत्थर की किस्मत देखो। बेजान पत्थर ने जब मेरे हुजूर का गवाही पेश किया, वही हुजूर है उस पत्थर को आजाद कर देते हैं। और पत्थर आज भी अल्लाह का फजल है कि पत्थर आज भी आजाद होने वाली चीज है। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ जो लोग ये सोचते हैं अगर हुजूर के रास्ते को इख्तियार कर लेंगे, शरीयत इस्लाम को अगर अपनी जिंदगी में ला लेंगे तो दौलत खत्म हो जाएगी, शोहरत खत्म हो जाएगी,
सदके, ये तमाम चीजें मुस्तफा जाने रहमत के कदमों के सदके मिले। खाली अशार सुनने से नहीं होगा, अशार के अंदर आप समाइए, समाने के बाद उस अशार को समझने की कोशिश कीजिए। अशार कहता क्या है, मजीद अशार है। अल्लामा इकबाल का वो अशार आपने 12 सुना होगा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। पता क्या चला, आज दुनिया सोचे हम नमाज पढ़ लिए, नमाज से जन्नत हासिल कर सकते, कभी नहीं। आज दुनिया ये सोचे कि मैं पूरी जिंदगी इबादत कर लो जन्नत मिल जाएगी। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ लो, अगर दिल में इश्क़ रसूल नहीं तो तुम्हारी इबादतें कबूल नहीं हो सकती है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, मोहम्मद के साथ वफादारी नहीं, मोहम्मद को अपना भाई कहते हो और कहते हो कि मोहम्मद हमारी तरह है। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत का कोई सगा भाई भी नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत का कोई सगा अपना भाई नहीं है। लेकिन आज दुनिया कहती है वो तो हमारी तरह थे, हमारे तरह खाते थे, हमारे तरह पीते थे। मैं कहना चाहता मुस्तफा जाने रहमत को अपनी तरह कहना चाहते हो, मुस्तफा जाने रहमत को अपनी तरह बाद में करना, कम से कम अपने इशारे से कभी चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ, फिर मैं कहूंगा कि मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मुस्तफा जाने रहमत को अपनी तरफ कहते हो। मुस्तफा जाने रहमत ने तो डूबा सूरज को पलटा दिया मौला अली के लिए। क्या तुम भी अपने उंगली के इशारे से डूबे सूरज को बुला सकते हो? कभी नहीं हो सकता है। कान खोल के सुनने मुसलमानों, ये मोजज़ा जो है ना, मैंने जो अशार पढ़ा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह सैयदी सरकारे आला हज़रत को समझा कीजिए, सैयदी सरकारे आला हज़रत ने अशार में क्या समझाना चाहा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। दुनिया में जितने नबी आए हैं ना, अगर सबको चमक मिली है तो मेरे हुजूर के कदमों के सदके। आदम नबी हैं लेकिन हमारे नबी से अफजल नहीं हो सकते। खाली सैयदी सरकारे आला हज़रत के अशार पे ही रोशनी डाली है। सैयदी सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा कहिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा कहिए जिसे, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आज हम और आप कहते हैं कि हुजूर हमारे तरह है। आदम ने कभी नहीं कहा कि हुजूर हमारे तरह है, नूह ने कभी नहीं कहा कि हुजूर हमारे तरह है। पूरे नबी की तारीफ पढ़ लीजिए, कोई नबी नहीं कहा कि हुजूर हमारे तरह है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, जब हुजूर की बात सुने ना, हुजूर की जिक्र सुने तो अल्लाह के बारगाह में दुआ करते थे, परवरदिगार मुझे मूसा नबी बनाकर नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती बनाकर पैदा कर। एक नबी उम्मती होने के लिए दुआ करे। बहुत मुकद्दर की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मत मुहम्मदी बनाया। बहुत फख्र की बात है। दुनिया में आदम पहले आए हैं, आदम के कौम पहले आई है, आदम के चाहने वाले पहले आए हैं। लेकिन बरोज़े क़यामत मैदान महशर के आलम होगा ना, आदम के चाहने वाले आदम के पास जाएंगे, आप हमारा नबी थे, अब अल्लाह की बारगाह में मेरी शिफात कराइए और अल्लाह की बारगाह में कहिए कि मुझे जन्नत में भेजिए। आदम का जानते हैं जवाब क्या होगा, इज़हबू इला गैरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी दूसरे के पास चले जाओ। किताबों में आता है कि नूह के चाहने वाले नूह के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं, आपने दुनिया में हमारा नबी बनकर रहे, हम आपकी उम्मती बनकर रहे। अब आज अल्लाह की बारगाह में फरियाद कीजिए और अल्लाह की बारगाह में ये मेरे लिए शिफात का मुद्दा सुनाइए ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत में भेज दे। नूह का जवाब है इज़हबू इला गैरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम किसी दूसरे के पास चले जाओ। पता ये चला कि दुनिया आदम के पास जाएगी, आप मुझे जन्नत में भेजे। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी दूसरे के पास चले जाओ। दुनिया नूह के बारगाह में आएगी, नूह का जवाब यही होगा इज़हबू इला गैरी। वहां से लोग हजरत इब्राहिम के बारगाह में पहुंचेंगे, कहेंगे आप अल्लाह के खलीलुल्लाह है, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आज अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए शिफाअत का मुद्दा सुनाइए ताकि अल्लाह मुझे जन्नत में भेज दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम किसी दूसरे के पास चले जाओ। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आदम के चाहने वाले आदम के बात को माना, लेकिन मैदान महशर में आदम के पास जब जा रहे हैं तो आदम का जवाब इज़हबू इला गैरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी दूसरे के पास चले जाओ। किताबों में आता है कि आदम के चाहने वाले भी जमा होंगे, नूह के चाहने वाले। वक्त नहीं कि मजीद मजाक होने की तेजी के साथ बताओ, जितने पैगंबर दुनिया में आए हैं ना, सारी पैगंबर जमा होंगे और सारी पैगंबर के साथ साथ सारे पैगंबर के कौम जमा होंगे। सारे
पैगंबर की कौम जमा होगी, सारे पैगंबर की उम्मती जमा होगी। आदम के उम्मती ये सोचे कि दुनिया में हमारे नबी पहले आए थे, अब जन्नत में जाने की बारी है, आदम के उम्मती पहले जाएंगे। रब का फरमान है नहीं नहीं, आदम के उम्मती को रोक लिया जाए। नूह के चाहने वाले ये सोचेंगे हुजूर से पहले दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए थे। नूह के चाहने वाले ये सोचेंगे कि हुजूर से पहले हम लोग जन्नत में जाएंगे। लेकिन किताबों में आता है कमोबेश 1,24,000 पैगंबर होंगे और कमोबेश 1,24,000 पैगंबर की उम्मती होगी। हर उम्मती ये सोचे कि जन्नत मुझे पहले मिलेगी, जन्नत मुझे पहले मिलेगी। लेकिन किताबों में आता है अगर जन्नत में जाने की सबसे पहले बारी आएगी तो उम्मत मोहम्मदी की आएगी। दुनिया में हम आखिर में उम्मती बनकर आए, लेकिन जन्नत में जाने की बारी आएगी तो सबसे पहले उम्मत मोहम्मदी को जन्नत में भेजा जाएगा। ये बहुत फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो नबी दिया ना, वो नबी दिया जो नबी नहीं बल्कि तमाम नबियों का इमाम है, जो नबी नहीं तमाम नबियों का इमाम है। आज अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप किस नबी का कलमा पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ ये मत कहिएगा कि मैं सिर्फ अपने नबी मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ता हूँ, बल्कि आप उसको ये कहिए कि मैं सिर्फ नबी का कलमा नहीं पढ़ता हूँ बल्कि तमाम नबियों का इमाम का कलमा पढ़ता हूँ। मैं जिसका कलमा पढ़ता हूँ उसका कलमा नबियों ने पढ़ा है, उसका कलमा नबियों ने पढ़ा है। आदम के चाहने वाले आदम का कलमा पढ़ा, लेकिन आदम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूह के चाहने वालों ने नूह का कलमा पढ़ा, लेकिन नूह का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हालत ये होती थी जो नबी होते थे, नबी की उम्मती नबी का कलमा पढ़ती थी, लेकिन हर नबी मेरे नबी का कलमा पढ़ते थे, हर नबी मेरे नबी का कलमा पढ़ते थे। तो सैयदी सरकारी आला हज़रत ने क्या फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सैयदी सरकारी आला हज़रत ने फरमाया आदम को चमक मिली मेरे नबी के कदमों के सदके मिली, नूह को चमक मिली मेरे नबी के कदमों के सदके मिली, इब्राहिम को चमक मिली मेरे नबी के कदमों के सदके मिली। अगर दुनिया में रोशनी फैली मेरे नबी के कदमों के सदके में फैली। इसलिए हुजूर नेमतुल उलमा फरमाते हैं ये 12 न होती तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। ये 12 न होती तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये दुनिया में जितनी चीजें देख रहे हैं ना, अगर दुनिया की तमाम चीजों को देख रहे हैं ना, ये सब मेरे हुजूर का कदमों का सदका है। अगर हुजूर ना होते तो दुनिया की कोई चीज नहीं होती। बहुत बड़ा शायर भी मक्का शरीफ में गया था हज करने के लिए। आला हजरत ने मक्का से हज किया और मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए। मैं आला हजरत की इल्म की रिसाई बता रहा हूँ कि आला हजरत कितने इल्म वाले थे। आज दुनिया कहती है आला हजरत को क्यों मानते हो, आला हजरत से मोहब्बत क्यों करते हो, बरेली को क्यों मानते हो, बरेली क्यों जाते हो, उनके घराने वालों को क्यों मानते हो। मैं कहना चाहता हूँ तुमने आला हजरत को जाना ही नहीं, तुमने आला हजरत को पहचाना ही नहीं। मेरे आला हजरत कैसे आला हजरत थे, मेरे आला हजरत सिर्फ नाम के आला हजरत नहीं थे, बल्कि उनके पास इल्म इतना था ना, इतना इल्म था कि पहाड़ के समंदर मानी जाती थी आला हजरत। वही आला हजरत है मक्का के सरजमीन से मदीना शरीफ जाते हैं। जब मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ा शायर भी मदीना शरीफ जाता है इसके लिए। किताबों में आता है आला हजरत के बारे में वो शायर नहीं जानता है। वह मदीना शरीफ जब जाता है तो मदीना शरीफ जाने के बाद रोज़ा अनवर के पास, यानी मेरे हुजूर के रोज़ा के सामने पहले एक खजूर का दरख्त हुआ करता था। पहले पुरानी जिसके पास तस्वीर होगी वो देखे हुए कि मदीना शरीफ के पास पहले एक खजूर का दरख्त हुआ करता था, लेकिन अब तामीरी सिलसिला के वजह से, आगे काम बढ़ाने की वजह से उस दरख्त को हटा दिया गया है। अब वो दरख्त मदीना शरीफ रोज़ा अनवर के सामने नहीं है, लेकिन पहले पुरानी तस्वीर में खजूर का दरख्त था। तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर दिया था वहाँ, हिंदुस्तान के शायर। अब हिंदुस्तान का शायर जब दिया ना और रोज़ा अनवर के सामने, यानी मेरे हुजूर के रोज़ा के सामने जब गया, इतना बड़ा शायर था, इतना बड़ा शायर था कि जब हुजूर के दरख्त को देखा और मेरे हुजूर के रोज़े को देखा ना, इतना बड़ा शायर था कि हुजूर के दरख्त को देखने के बाद अपनी ज़हन में, अपनी दिमाग में एक शायरी लिख लिया। और एक शायरी लिखा, ऐसी शायरी लिखी, ऐसी शायरी लिखी कि शायरी सुनने के बाद पूरा मदीने वाले उससे खुश हो गए। जानते हैं शायरी क्या लिखता है? वो शायर बड़ा मशहूर शायर था, हिंदुस्तान का टॉपर शायर था, पूरे मदीने वाले जमा है। वो शायर शायरी लिखता है, हुजूर के दरख्त को भी देखता है और हुजूर के रोज़े अनवर को देखता है, हुजूर के मज़ार मुक़द्दस को देखता है, और अपनी दिमाग में और अपनी दिल की तख्ती पे एक शायरी लिखता है। शायरी ये होती है उसकी, शायरी ये होती है, शायरी यूँ लिखता है कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने। गौर से सुनिएगा, कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने,
सामने मजनू खड़ा है खेमे लैला के सामने। लोग खुश हो गए, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, इतना दाद से नवाजे, इतना पैसा दिए कि शायर खुद कह रहा था कि मदीना शरीफ से मैं आ रहा था, इतनी मुश्किल हो रही थी पैसा लेके आने में कि मैं परेशान था कि ये पैसे को लेकर कैसे जाऊंगा हिंदुस्तान में। लोग इतने खुश हुए से, इतने खुश हुए कि वाह क्या शायर है, कितनी अच्छी शायरी की है। हुजूर के दरख्त को भी शामिल कर दिया है और हुजूर के रोजे को भी शामिल कर दिया है। बहुत बड़ा शायर था, लेकिन उसकी शायरी आला हजरत के एक मुरीद ने भी सुन लिया। आला हजरत के जब मुरीद ने सुना, उस शायरी को नोट कर लिया और उस शायरी को लिख ली और लिख लेने के बाद कहा अपने पीरो मुर्शिद आला हजरत को मैं सुनाऊंगा। आला हजरत की बारगाह में मुरीद पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता हुजूर आज गजब हो गया, इसी मदीने के सरजमी पे एक हिंदुस्तान से एक ऐसा शायर आया है, बड़ा कमाल का शायरी किया है, ऐसी शायरी कर दी है जिसके शायरी से पूरे मदीने वाले खुश हो गए हैं, पूरे मदीने वाले उसे दाद से नवाज रहे हैं, पूरे मदीने वाले उसे पैसा से नवाज रहे हैं, पूरे मदीने वाले उसे दौलत से नवाज रहे हैं, पूरे मदीने वाले उसे खुश हो गए हैं, पूरे मदीने वाले अपने जान देने के लिए तैयार है। बड़ा कमाल की शायरी किया है। जब आला हजरत सुनते हैं ना, आला हजरत कहते हैं कैसा शायरी किया है, क्या मैं भी सुन सकता हूँ शायरी को? मुरीद ने कहा हुजूर आपको ही सुनाने के लिए उस शायरी को लिख कर लाया हूँ, वो शायरी सुनाने के लिए मैं आप ही को सुनाने के लिए मैं लिख के लाया हूँ। आला हजरत कहते हैं अगर लिख के लाए हो तो सुना दो। आला हजरत कहते हैं अगर लिख के लाए हो तो सुना दो। आला हजरत के मुरीद कहता हुजूर सुन लीजिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं सुनाओ कैसी शायरी है, आखिर कौन ऐसी शायरी है जिससे पूरे मदीने वाले खुश हो गए हैं। हिंदुस्तान का शायर, आला हजरत के जमाने में शायर और हमसे तरक्की में शायर और हमसे अच्छा शायरी करने वाला आखिर है वो कौन सा, और कैसी शायरी की है जिससे पूरे मदीने वाले खुश हो गए। आला हजरत के मुरीद ने कहा हुजूर शायरी सुनिए, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। आला हजरत के मुरीद ने कहा हुजूर शायरी ये की उसकी, शायर ने कहा था कि कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने। आला हजरत मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छी शायरी है। मिसरा सानी सुनाओ। जब मुरीद ने पहला मिसरा पढ़ा था कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, किताबों में आया है पहला मिसरा पे आला हजरत मुस्कुरा रहे थे कि बड़ा कमाल का शायरी किया है। लेकिन जब मिसरा सानी पढ़ा मुरीद ने और कहा कि पहला मिसरा ये था कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने और मजनू खड़ा है खेमे लैला के सामने, किताबों में आया है। आला हजरत पहले मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मिसरा यानी दूसरा मिसरा सुनने के बाद नाराज हो गए और गुस्सा हो गए। कहा वो शायर कहाँ है, उसे मेरे बारगाह में बुला कर लाओ, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। उसकी ये हिम्मत मेरे नबी को लैला से मजनू, मेरे नबी को लैला से तस्वीर है, उसकी ये हिम्मत मेरे नबी को मजनू से तस्वीर है, मेरे नबी को लैला के बराबर कहे, मेरे नबी को मजनू के बराबर कहे, उस शायर को बुला कर लाओ। आला हजरत के बात सुनने के बाद मुरीद ने कहा हुजूर क्या बात कर रहे हैं, उसके शायरी से तो पूरे मदीने वाले खुश हैं, उसके शायरी से पूरे मदीने वाले पैसे से नवाज रहे हैं, उसकी शायरी सुनने के बाद पूरे मदीने वाले उसके शायरी पे जान देने के लिए तैयार है, पूरे मदीने वालों को शायरी पसंद आ गई है, पूरे मदीने वाले उसके शेर को पसंद किए हैं। लेकिन आप ही एक ऐसे आदमी हैं जो उसकी शायरी से इनकार कर रहे हैं, उसकी शायरी पे एतराज कर रहे हैं, ये शेर गलत है। लेकिन पूरे मदीने वालों ने कोई एतराज नहीं किया, पूरे मदीने वाले तो इस शेर से खुश हैं। आला हजरत ने कहा नहीं उसे बुलाकर मेरे बारगाह तक लाओ। किताबों में आता वो मुरीद जाता है और जाने के बाद उस शायर से कहता सुनो सुनो, हिंदुस्तान के सरजमी पे इमाम अहमद रजा भी हज के लिए आए हैं, वो तुमसे मुलाकात करने के लिए चाहते हैं। इतना सुना ना शायर, आला हजरत के नाम सुना था। आला हजरत के नाम सुनते ही जब सुना कि आला हजरत मुलाकात के लिए बुला रहे हैं, शायर कहता है कि मैं समझ गया कि हो सकता है कि आज आला हजरत को हमारी शायरी पसंद आ गई होगी। वो शायर ने मुरीद से कहा मैं जानता हूँ इमाम अहमद रजा को आज मेरी शायरी पसंद आ गई है। सुनो मैं पूरी जिंदगी कोशिश करता था कि इमाम अहमद रजा से मुलाकात हो जाए, लेकिन पूरी जिंदगी मुलाकात नहीं हुई है। हमें ये लगता है कि आज हमारी शायरी की वजह से इमाम अहमद रजा से मुलाकात हो जाएगी। शायर ये सोच रहा था शायद इमाम अहमद रजा हमारी शायरी से खुश हो गए हैं, इसलिए हमसे मुलाकात करने के लिए बुला रहे हैं। मुरीद से कहा क्या हमारी शायरी उन्हें पसंद आ गई है? मुरीद ने कहा पसंद आई है या नहीं आई है ये तो बाद में फैसला होगा, पहले आप मुलाकात तो कर लीजिए। शायर ने कहा चलो ठीक है, उन्हीं के बारगाह में चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेंगे क्या पसंद आ गई है हमारी शायरी। दिल ही दिल में शायर का ये ख्याल था कि जिस शेर से पूरे मदीने वाले खुश हैं, जिस शेर के वजह से पूरे मदीने वाले मुझे नवाज रहे हैं, उस शेर से अहमद रजा भी खुश होगा। शायर बड़ा फातिहाना अंदाज, बड़ा शान और शौकत के साथ जा रहा था और सोच रहा था कि अहले मदीना वालों ने नवाजा है, अब इमाम अहमद रजा भी मुझे नवाजेगा। लेकिन मुसलमानों गौर करो, जब आला हजरत की बात
बारगाह में जाता है और जाने के बाद कहता है इमाम मोहम्मद रजा क्या बात है, आज हमारी शायरी आपको पसंद आ गई, आज समझ गए ना कि मैं कितना बड़ा शायर हूँ। आला हजरत ने कहा कि हाँ मैं समझ गया कि तुम कितना घटिया शायर हो। जब इतना सुना ना तो गुस्से से ताली हो गया और नाराज होने लगा। कहा क्या इमाम मोहम्मद रजा ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी शायरी सुनने के बाद पूरा मदीने वाले हमारे शायरी पर जान देने के लिए तैयार है, हमारी शायरी सुनने के बाद पूरे मदीने वाले मुझे जान से नवाज रहे हैं, पूरे मदीने वाले मुझे पैसा से नवाज रहे हैं, पूरे मदीने वाले ने मेरी शायरी को पसंद किया। लेकिन आप कहते हैं कि हमारी शायरी गलत है, आखिर कौन सी बात गलत है इसमें? जब इतना कहा ना तो आला हजरत ने कहा सुनो सुनो तुम्हारी शायरी में गलतियां कौन सी है मैं बता दूं। शायर ने कहा बताइए मेरी शायरी में कौन सी गलतियां है। आला हजरत ने कहा सुनो तुम जिस शेर को लिखे हो तुम्हारा मिसरा उला सही है, पहला मिसरा सही है लेकिन मिसरा उला सही है लेकिन मिसरा सानी सही नहीं है, जो दूसरा मिसरा है वो दुरुस्त नहीं है, उसका इस्लाह करो। शायर ने कहा गलत क्या है? आला हजरत ने कहा तुम्हारा मिसरा उला ये है तब है गुंबदे शहर वाला के सामने और मजनू खड़ा है खेमे लैला के सामने। सुनो मेरे नबी तो ऐसे नबी थे जिस नबी के बारे में आदम ने कभी नहीं कहा कि हमारे तरह नबी है, जिस नबी को नूह ने नहीं कहा कि हमारे तरह नबी है, जिस नबी को इब्राहिम ने नहीं कहा कि हमारे तरह नबी है। कोई नबी मेरे नबी की तरह नहीं कहा, कोई सहाबा मेरे नबी को अपनी तरह नहीं कहे। और तुम एक मजनू से मेरे नबी का मुसाबा कर रहे हो, तुम एक लैला से मेरे नबी को मुकाबला दे रहे हो, कह रहे हो कि मजनू खड़ा है खेमे लैला के सामने, क्या मजनू की तरह हमारे नबी थे? हमारे नबी तो वह नबी थे अगर इशारा कर दे तो धुआं सूरज निकल आए, हमारे नबी तो वह नबी थे अगर इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए। और तुम लैला मजनू से मेरे नबी का मुसाबा करते हो, क्या हमारे नबी लैला की तरह थे, क्या हमारे नबी मजनू की तरह थे? उसने कहा नहीं नहीं आला हजरत हमारी तो ख्याल ही नहीं था, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो गलत हो गई है, ये तो गलत कर दिया हमने अपने नबी की शान को घटा दिया, हमने अपनी नबी की अजमत को घटा दिया, हमने अपने नबी को तो लैला की तरह कह दिया, हमने अपने नबी को तो मजनू की तरह कह दिया। इतना कहा ना तो आला हजरत कहे कि इस्लाह कर लो, पहला मिसरा सही है लेकिन मिसरा सानी गलत है, दूसरा मिसरा का इस्लाह होगा। वो शायर आला हजरत की बारगाह में आला हजरत के कदमों पे गिर जाता है और कहता हुजूर पूरे मदीने वाले जिस शायरी से खुश थे उस शायरी से सिर्फ आप नाराज हैं, अब पूरे मदीने वाले इसका इस्लाह नहीं करेंगे। अगर इस्लाह करने वाली कोई जात होगी तो आला हजरत की जात होगी। अगर इस शायरी को अगर दुरुस्त करिएगा तो इस शायरी को दुरुस्त आप ही कर सकते हैं, इस शायरी को दुरुस्त आप कीजिए। आला हजरत ने कहा चलो ठीक है इस शायरी को दुरुस्त मैं करता हूँ। अब आला हजरत की शायरी सुनो। शायर ने क्या कहा था? शायर ने ये शायरी लिखा था कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने और मजनू खड़ा है खेमे लैला के सामने। लेकिन आला हजरत जब कलम उठाए और मिसरा सानी दुरुस्त किए, जब आला हजरत अपनी इल्म दिखाना चाहे और आला हजरत अपनी इल्म की रिसाई बताना चाहे तो आला हजरत कलम उठाते हैं और कलम उठाने के बाद कहते सुनो तुम्हारा ये मिसरा उला सही है, मिसरा उला में कोई चेंजिंग नहीं होगी, मिसरा उला में कोई बदलाव नहीं होगा बल्कि मिसरा सानी बदला जाए। मिसरा सानी बदलने के लिए आला हजरत ने कहा मिसरा उला ये है कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, ये बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन मिसरा सानी रहेगा। आला हजरत क्या लिखते हैं? आला हजरत इसी शायरी का डबल करते हैं और क्या लिखते हैं? तब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने खुद सी खड़ा है अर्शे मुअल्ला के सामने। अब आला हजरत को पहचानिए। एक हिंदुस्तान के शायर दरख्त देखा, हुजूर के रोजा देखा तो लैला से तस्बीह दी, मजनू से तस्बीह दी, यानी उसकी इल्म की रिसाई दुनिया तक महदूद रह गई, दुनिया से ऊपर नहीं गया। लेकिन आला हजरत ने जब कलम उठाया तो लिखे खुद सी खड़ा है अर्शे मुअल्ला के सामने। आला हजरत उसे कहते हैं जब नबी की तारीफ हो तो मदीना से तारीफ करते करते जन्नत तक पहुंचा दे, मदीना से तारीफ करते करते जन्नत तक पहुंचा दे। ये जात है आला हजरत की, ये इल्म की पहचान है आला हजरत की। क्यों ना मोहब्बत करें हम आला हजरत से, क्यों ना मोहब्बत करें हम आला हजरत से। उन्होंने जिंदगी गुजारा है मेरे हुजूर के तरीके से जिंदगी गुजारा है। इतनी इश्क थी, इतनी इश्क थी हुजूर से, इतनी इश्क थी ना, इतनी इश्क थी। किताबों में आता है कि जो नबी के ऊपर एक बार दुरूद पड़ता है, मुसलमानों सुन लो, जो नबी के ऊपर एक बार दुरूद पड़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 रहमतें नाजिल करता है। किसी सहाबा ने पूछा हुजूर अगर कोई इंसान 10 बार दुरूद पढ़े, हुजूर ने इरशाद फरमाया उसके ऊपर अल्लाह 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया हुजूर अगर कोई 100 बार दुरूद पढ़े हुजूर के, हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके जन्नत में एक महल बनाता है।
اللہ ताला उसके नाम पे जन्नत में एक महल बनाता है। कितनी प्यारी बात है, जो हुजूर पे एक बार दुरूद पड़े, सिर्फ एक बार, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल करता है। और अगर कोई 10 बार पढ़े, अल्लाह 100 बार रहमतें नाज़िल करता है। अगर कोई इंसान 100 बार दुरूद पढ़े तो मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके नाम पे एक महल बनाता है। अब इंसान को तकलीफ होती है ना, दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है इंसान के पास, मुश्किल से दिन भर में अगर पढ़ता हुआ 1 से 2 बार, वो भी जबरदस्ती मिलाद में कहना पड़ता है, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, एक बार हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, एक बार रोजी में बरकत के लिए पढ़ लीजिए, एक बार माल में दौलत के लिए बरकत के लिए पढ़ लीजिए। बार बार करना पड़ता है, तो इंसान 1 से 2 बार दुरूद पढ़ता है। लेकिन आला हजरत की पहचान देखिए, आला हजरत जब आला हजरत इस किताब के बारे में और इस फरमान के बारे में पढ़ते हैं कि किसी ने अगर हुजूर पे एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल करता है। किसी ने 10 बार पढ़ा, अल्लाह 100 रहमतें नाज़िल करता है। और किसी ने अगर 100 बार पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम का जन्नत में एक महल बनवा देते हैं। अब आला हजरत के मुरीद ने कहा, हुजूर एक बार तो हुजूर पे दुरूद पढ़ना आसान हो जाता है, 10 बार पढ़ना आसान हो जाता है, 100 बार पढ़ना आसान हो जाता है। हुजूर मैं चाहता हूँ कि इससे बढ़कर भी दुरूद पढ़ा जाए, इससे बढ़कर भी सलाम पढ़ा जाए। कोई और तरीका बताइए जो आसानी के साथ सलाम पढ़ा जाए। तो आला हजरत कलम उठाते और लिखते, पढ़ना है तो पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शहरे बजने हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे जाने ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत जब कलम उठाते हैं, एक बार सलाम नहीं, एक बार दुरूद नहीं, बल्कि 1000 बार की बात करते हैं। फिर मुरीद कहता, हुजूर ये तो 1000 बार एक बार में पढ़ा जा रहा है, इससे बढ़कर भी अगर कोई वजीफा हो जो मेरे नबी पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पहुंचे, मेरे नबी पे ज्यादा से ज्यादा सलाम पहुंचे, तो आला हजरत फिर कलम उठाते और कमाल करते हैं, कहते लिखो, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताइबा के शम्सु दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैर क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यहाँ एक दुरूद पढ़ना मुश्किल हो रहा था, यहाँ 10 दुरूद पढ़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आला हजरत ने क्या हमें सलाम दिया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। एक बार पढ़ो लेकिन लाख बार मेरे हुजूर। यहाँ तक मौजूद नहीं हुआ, जब आला हजरत ने इससे आगे लिखा तो लिखा, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों दुरूद। आला हजरत की इल्म की निशानी से कहते हैं। वक्त नहीं है कि आला हजरत की जात को बयान किया जाए, पूरी रात आला हजरत की तारीफ बयान की जाएगी, रात खत्म हो जाएगी, लेकिन आला हजरत की बात कभी खत्म नहीं हो सकती है। आला हजरत ऐसे शख्सियत थे। ये शादी खाना आबादी के तहत महफिल मिलाद है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जिस हदीस कुदसी का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे हुजूर फरमाते हैं, सुनो निकाह